میزبانی میں ہونے والے دوسرے سندھ امن جرگے کی کوریج کے لیے کافی دیر سے انتظار کیا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ عرصہ دراز سے صوبہ سندھ کے حالات دن بدن مخدوش ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی جزائر کا مسئلہ، کبھی وسائل کا مسئلہ، کبھی کارونجر کو فروخت کرنے کا مسئلہ، کبھی دریائے سندھ پر سودے بازی، کبھی میرٹ کا قتل عام، کبھی جعلی مینڈیٹ سے حکومتوں کو بنانا اور توڑنا، اور اس سے بڑھ کر بد امنی کی صورتحال اس وقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن کے گھوٹکی، کندکوٹ کشمور، شکارپور، جیکب آباد ضلع گو کے نوگو ایریا بنے ہوئے ہیں۔ حکومتی رپورٹ کے مطابق قتل ہونے والے لوگوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہے۔ حکومتی رپورٹ کے مطابق 400 سے زائد لوگ ڈاکوؤں کے چمبے میں رہے۔ معصوم 1.5 سال 2 سال کے بیک وقت 3 4 بچے ڈاکوؤں کے چمبے میں رہے۔ دن دہاڑے سکھر میں شہید خالد محمود سمرو شہید ہو جاتے ہیں۔ دن دہاڑے سکھر میں جان محمد مہر کا قتل ہو جاتا ہے۔ دن دہاڑے سکھر میں ڈاکٹر کرپال پر حملہ ہوتا ہے اور گاڑیاں لوٹی جاتی ہیں۔ حیدرآباد میرپور خاص نواب شاہ ڈویژن میں اسٹریٹ کرائم عروج پر ہے۔ کراچی ڈویژن میں اسٹریٹ کرائم عروج پر ہے، اور حکومتی وزراء، حکومتی ذمہ داران، سندھ حکومت کے نمائندگان سب کچھ اچھا ہے کا راگ روزانہ سناتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جو حالات بلوچستان میں، جو حالات خیبر پختونخوا میں، وہ حالات ہمارے نہیں، شکر کریں۔ میں سندھ حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام ان حالات تک کیوں پہنچے کہ آج وہ بغاوت پر اتر آئے ہیں اور ان کے ہاتھوں عوامی جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ ہے؟ آج اگر بلوچستان کے اندر کوئی غیر محفوظ ہے تو وہ پولیس والا ہے۔ آج اگر کوئی غیر محفوظ ہے تو وہ رینجرز اور آرمی سے تعلق رکھنے والا ہے۔ کل بھی میرے افواج پاکستان کے نوجوان شہید کر دیے گئے، ان کے لاشوں کو گھسیٹا گیا، شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے، اگر کوئی سرکاری ملازم ہے تو اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور یہاں پر سرکاری ملازمین کی سرپرستی میں ڈاکوؤں کو ہتھیار فراہم ہوتے ہیں۔ کیا وزیر اعلیٰ نے آج تک یہ بتایا ہے کہ یہ بھاری بھرکم ہتھیار کون سے راستے سے آتے ہیں؟ یہ بارڈر کیسے کراس کرتے ہیں؟ یہ جیکب آباد، شکارپور، کندکوٹ کشمور، سکھر اور لاڑکانہ کے ان ڈاکوؤں کے پاس کیسے پہنچتے ہیں؟ پولیس کے ناک کے نیچے، رینجرز کے ناک کے نیچے 2 کھرب کی بجٹ کے باوجود آخر ہتھیاروں کی رسائی ان ڈاکوؤں تک کیسے ہوتی ہے؟ آخر پولیس کیوں ناکام ہے؟ اور پھر شہید جان محمد مہر کے قتل میں نامزد مجرم اپنے موت آپ مرتا ہے، اس کو پولیس مقابلہ شو کیا جاتا ہے انعامی رقم حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے ورثاء سے بارگیننگ کر کے، غسل دلوا کے، کفن پہنا کے، کچے میں پولیس موبائل بھیج کے لاش وصول کیا جاتا ہے، فوٹو سیشن کرا کے پھر اس کا لاش واپس مالکوں کو دیا جاتا ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے۔ کیا یہ جان محمد مہر کے ساتھ اور اس کے ورثاء کے ساتھ مذاق نہیں؟ کیا یہ سندھ کے قوم کے ساتھ مذاق نہیں؟ کیا یہ عوام کے ساتھ مذاق نہیں؟ وزیر داخلہ صاحب یہ بتائیں گے
کہ آپ جس SSP کے ہر تقریب میں تعارفی کلمات کے بغیر اپنا خطاب پورا نہیں کرتے، کیا اس SSP صاحب نے ڈاکو کو منتھلی تنخواہ پر اپنے ٹیم میں شامل نہیں کیا؟ کیا آپ انکار کریں گے ان کے؟ کیا ہم ان کے نام پیش کریں کہ کون سے ڈاکو ہیں جو پولیس کے سرپرستی میں کام کر رہے ہیں؟ آخر کیوں سندھ حکومت عوام کو اس نہج پر مجبور کر رہی ہے کہ وہ اپنے 2 سال کے بچے کے تحفظ کے لیے، اپنی ماں بہن بیٹی کے عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے، اپنے روڈ اور راستے کے تحفظ کے لیے وہ بھی بندوق اٹھائیں، وہ بھی روڈ پر نکل آئیں اور وہ بھی اسٹیٹ کے خلاف اسی طرح کھڑے ہو جائیں جس طرح بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا جو ہے وہ عوام کھڑا ہوا ہے؟ ہم امن چاہتے ہیں، امن دینے کی بنیادی ذمہ داری حکمرانوں کی ہے۔ اگر ان کو دریاؤں کے سودوں سے، وسائل اور جزائر اور معدنیات کے سودوں سے، اگر ان کو کرپشن سے فرصت ملی ہے تو کم سے کم وہ امن کی طرف توجہ دیں، امن قائم کرائیں، اور اگر وہ امن قائم کرانے میں ناکام ہیں تو عوام کی جان چھوڑیں، ان کو پھر ان کرسیوں پر بیٹھنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر سندھ امن جرگہ ہوا۔ یہ امن جرگہ کسی کے خلاف نہیں، بلکہ یہ تو حکومت کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، رینجرز اور فوج کے ساتھ تعاون کے لیے منعقد کیا گیا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ امن کے لیے کون سا تعاون آپ کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں، کون سے سردار سے، نواب سے آپ کو مدد کی ضرورت ہے، کون سے قبائلی تصادم کے خاتمے کے لیے آپ کو کون سے سردار کی ضرورت ہے، کہاں قافلہ لے جانے کی، جرگہ لے جانے کی ضرورت ہے۔ ہم چلتے ہیں، ہم منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، ان برادریوں کو جرگوں کے لیے راضی کرتے ہیں، وہ راضی ہو جائیں، ان کی مرضی ہے وہ سیشن کورٹ میں اپنا فیصلہ کریں، وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپنا فیصلہ کریں، وہ ہائی کورٹ میں کریں یا سپریم کورٹ میں کریں، راضی تو ہوں بندوق پھینکنے پر، راضی تو ہوں قبائلی تصادم چھوڑنے پر، راضی تو ہوں وہ اپنے برادریوں کے اندر صلح کرنے پر۔ آج کا جرگہ تو اس کے لیے کیا گیا، جب تک قبائلی لڑائیاں ختم نہیں ہوں گی، قبائلی تصادم ختم نہیں ہوں گے، جب تک ان لڑائیوں کے فیصلے نہیں ہوں گے، تب تک آج کا امن جرگہ سمجھتا ہے کہ امن قائم نہیں ہو سکے گا، بندوق نہیں پھینکی جا سکے گی۔ وہ جو کچے کے اندر بندوق اٹھائے بیٹھے ہیں وہ بھی امن چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں، ان کی بچیاں عزت سے رخصت ہوں گھروں سے، ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی چاہتی ہیں کہ ان کو اپنے پیاروں کے جنازے گولیوں میں چھلنی نہ ملیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اپنی لڑائیوں سے باہر نکالا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو امن کے لیے آمادہ کیا جانا چاہیے۔ آج کا جرگہ تو اس لیے بلایا گیا تھا، یہ وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ حکومتی سرداران، حکومتی نواب، حکومتی میر اور قبائلی عمائدین آج کے اس جرگے میں شریک نہیں ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت سندھ نے ان کو خود منع کیا ہے کہ آپ نے امن کے کوششوں سے دور رہنا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ عوام کے ووٹ سے منتخب نہیں ہوئے، جعلی مینڈیٹ سے وہ اسمبلی میں گئے ہیں، اور ان کے لیے پیتیاں بھرنے والے اور فارم 47 کے لیے جعلی ووٹ ڈالنے والے، یہی جو ہے وہ بندوق اٹھانے والے لوگ ہیں۔ الیکشن کے دنوں میں کیوں امن قائم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ان حکومتی سرداران اور نوابوں اور میروں کو جتوانے کے لیے ان کو جعلی ووٹ ڈالنے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ آج حکومتی سرداروں نے، نوابوں نے، میروں نے جو شرکت نہیں کی ہے، اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے، اور سندھ حکومت نے خود ان کو قیام امن کے عمل سے روکے رکھا ہے۔ 25 اگست 2025 بروز پیر صبح 9 بجے کراچی میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی جنرل کونسل کا اجلاس ہوگا، صوبائی مجلس عمومی کا، جس میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب خصوصی طور پر شرکت کریں گے، جہاں امن امان کے حوالے سے معاملات پر مزید غور کیا جائے گا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے موجودگی میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ مزید امن امان کے حوالے سے اہم فیصلے 25 اگست کو کراچی میں جنرل کونسل کے اجلاس میں کرے گی۔ آج کے امن جرگے نے یہ طے کیا ہے کہ ایک خط آج کے امن جرگے کے توسط سے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل
जनरल आसिम मुनीर, कोर कमांडर सिंध, डीजी रेंजर सिंध, गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध की तरफ भेजा जाएगा और उनको दोनों अमन जरगे में सिंध के अमन अमान के हवाले से जो तजावीज़ सामने आई हैं उनसे आगाह किया जाएगा। आज के इस अमन जरगे में मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन, नवाब, सरदार, मीर और बिरादरियों के बड़ों के मौजूदगी में मुश्तमिल 34 रुकनी कमेटी मुरतब की जाती है। वो 34 रुकनी कमेटी जल्द शेड्यूल देगी और 34 रुकनी कमेटी उलमा को, मुफ्तियान को, मुअज़्ज़िज़ीन को, हुफ़ाज़ को, तलबा को, बरादरियों के मुअज़्ज़िज़ीन को ले जाकर मिंथ मेड़ काफ़िले ले जाएगी और क़बाइली लड़ाइयों के ख़ात्मे के लिए न सिर्फ उनको अपील करेगी बल्कि उनको उस वक़्त तक वहाँ से नहीं उठेगी जब तक वो अपने जरगे करने के लिए आमादा नहीं होते। उसके साथ साथ आज का ये अमन जरगा समझता है कि हम बंदूक उठाने वालों के पास भी जाएंगे, चाहे वो बरादरियों के हों, चाहे वो डाकू हों, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम करने वाले हों या उनके बड़े हों। हम यही मिंथ मेड़ काफिला लेकर उनकी तरफ जाएंगे कि हुकूमत और आपकी लड़ाई में हुकूमत कमज़ोर पड़ गई है। आप बज़ाहिर ताकतवर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके इस हुकूमत और आपकी इस लड़ाई से न हुकूमत को नुकसान हो रहा है, न आपको नुकसान हो रहा है। नुकसान सिंध के अवाम को हो रहा है, सिंध को हो रहा है। आपके इस इक़दाम से पूरे मुल्क में सिंध बदनाम हो रही है। लिहाजा आएँ, सिंध के खातिर, अवाम के खातिर बंदूक छोड़ें और आप अवाम की जान, माल और इज़्ज़त और आबरू को आँच न आने दें और उससे आप दूर रहें। उसके साथ साथ आज के सिंध अमन जरगे ने यह तय किया है कि 11 सितंबर 2025 को जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध की मेज़बानी में सिंध अमन मार्च या सिंध अमन कारवां का आगाज़ कश्मोर से किया जाएगा। कश्मोर से होते हुए शिकारपुर, सक्खर, खैरपुर, नौशेर फ़िरोज़, नवाब शाह, मटियारी, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद ख़ान, सिजावल, ठट्टा से अमन कारवां कराची में दाखिल होगा। वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाजी पुरअमन मुज़ाहिरा और धरना दिया जाएगा और वज़ीर आला सिंध को इस हवाले से बेदार करने की कोशिश की जाएगी, चाहे उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या 3 दिन लगे, लेकिन 11 सितंबर 2025 को कश्मोर से सिंध अमन कारवां, सिंध अमन मार्च रवाना होगा, जिसमें मैं आज तमाम सियासी जमातों को, मजहबी जमातों को, कौम परस्त जमातों को, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान को, वकला को, सहाफ़ियों को, स्टूडेंट तंजीमों को और अवाम उन्नास को शिरकत की अपील करता हूँ। आएँ, सिंध के अमन के लिए आप इस अमन कारवां में हमारे साथ शरीक हो जाएं ताकि सिंध के अमल के लिए हम अमली तौर पर इक़दाम कर सकें। प्रिया कुमारी के बाजियाबी के लिए आज का ये अमन जरगा भरपूर मुतालबा करता है। डॉक्टर कृपाल दास पर हमले की आज का ये जरगा शदीद मजम्मत करता है। शिकारपुर पुलिस ने 11/7/2025 को अब्दुल करीम भरचून, गुलाम कादिर, अली जान और आसूदी खान को उठाकर गुम कर लिया है। आज का ये अमन जरगा उस पर तशवीश का इजहार करते हुए पुलिस से उनकी फौरी बाजियाबी का मुतालबा करता है। मैं एक मरतबा फिर आपका दिल के गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। कोई सवाल होगा तो मैं हाजिर रहूँगा। अगर हम गाँव देहातों की बात करें तो न वहाँ तालीम है, इसी वजह से न सेहत है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई सरगर्मियाँ नहीं है। शहरों की बात करें तो शहरों में इस वक्त लोग अपने घरों में महफूज नहीं है, घरों में मारा जा रहा है, ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है। मासूम बच्चों को, 4-4 साल बच्चों को छोटी सी बाइक की मुज़ाहमत पर गोलियाँ मारी जा रही है। डॉक्टर कृपाल का मामला आपके सामने है और उसके अलावा छोटी सी मुज़ाहमत पर कैश लूटने के मामले पर
पहले गोली मारी जाती है, फिर कैश लूटा जाता है। ये इंतहाई फ्रस्ट्रेशन की बात है। आपका जो टाइटल है वो हार्ड कोर टाइटल है सबके लिए। इसके सियासी मकासद कुछ भी हों, लेकिन हम इसको देखते हैं प्योरली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस के हवाले से। आपने बहुत अच्छी बातें की कि वो लोग के जो नहीं आए, सरदारों की मैं बात कर रहा हूँ, और मेजॉरिटी नहीं आ रही। पिछली दफ़ा भी हमने एक क्वेश्चन किया था कि उन लोगों के नाम क्या डिस्क्लोज होंगे। आज अपने उसके हवाले से बहुत हौसला अफजा बात की है कि वो किसी के हाथों में खेल रहे हैं। तो फर्स्ट लेयर एक सवाल पैदा होता है कि फर्स्ट लेयर जो सरदारों की है वो नहीं आ रही, क्या वजूहात हैं, और पिछले से लेकर अब तक की जो क्या डेवलपमेंट आई है, थोड़ा सा बताएं कि क्या। देखें, सबसे पहली चीज़ आपने जो तमहीदी गुफ्तगू की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जो मार रहे हैं, क्या उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मालूम नहीं? क्या उनको मरना नहीं? क्या उनको अल्लाह के सामने पेश नहीं होना? क्या उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना नहीं करना? हम उनको अपील करने के लिए आज फैसला किया कि उनके पास जाएंगे, उनको समझाएंगे, उनको अपील करेंगे, दरख्वास्त करेंगे। खून क्यों सस्ता हो गया है? 50 रुपये पर खून हो रहा है, 500 रुपये पर कत्ल हो रहा है। इतना इंसान का खून सस्ता हो गया। जहाँ तक आपने बात की सरदारान के नाम, आपको लिस्ट आज जारी कर दी जाएगी जो नहीं आए। लेकिन ये कहना कि फर्स्ट लेयर नहीं आई, मेरे नज़र में हर बिरादरी का बड़ा वो फर्स्ट लेयर है। आज हुकूमती सरदारान नहीं आए, हुकूमती नवाब नहीं आए, और इसलिए नहीं आए कि उन पर हुकूमत का जोर है और वो अपने हुकूमत को नाराज़ नहीं कर सकते। शायद बहुत सारे आने चाह रहे हों, शायद मैं उनकी नेक नीयती पर शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसका ज़िम्मेदार उनको नहीं, हुकूमत सिंध को समझता हूँ। और मुझे को गुफ्तगू पूरी करने दें। उसके साथ साथ जहाँ तक आपने फरमाया कि सियासी मकासद, मुझे ये बताएं कि यहाँ जो सरदारान बैठे हुए हैं, इनमें से तो 2-4 के अलावा किसी का जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। कल इलेक्शन में वो कहाँ खड़े होंगे, किसके साथ खड़े होंगे? वो कल भी आज़ाद थे, आइंदा कल भी आज़ाद हैं। मुझे सियासत करने के लिए बहुत अच्छा महाज है, बहुत अच्छा मैदान है। जमीयत उलमा इस्लाम से बड़ी सिंध में कोई अवामी कुव्वत नहीं है। मैं पीपल्स पार्टी को अवामी जमात नहीं समझता, इस्टब्लिशमेंट की जमात समझता हूँ। अवामी जमात इस वक्त सिंध में है तो जमीयत उलमा इस्लाम है। मेरे पास बहुत महाज हैं, मैं कर सकता हूँ, करूँगा, सियासत कर रहा हूँ, करूँगा। लेकिन आज का ये इजलास जरगा सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं, अमन अमन अमन, अवाम 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 और सिंध के लिए है। उसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। देखिए, ये तो अगर और मगर वाली बातें हैं ना। हम अगर मगर से निकल कर आपको अमली इक़दाम दे रहे हैं कि हम मार्च कर रहे हैं वज़ीर आला हाउस की तरफ। हम अमली आपको इक़दाम दे रहे हैं कि हम जरगे लेकर जा रहे हैं अमन के लिए, मिंट मेड़ काफ़िले। मेरा ख्याल ये है कि यही सबसे मुनासिब होगा। बाकी इख्तियारात मुझे मिले तो इंशाअल्लाह मैं आपको एक दिन में सब कुछ ठीक करके दिखा दूँगा। अफराद इधर मौजूद आए हैं, उसमें से जितने लोग नहीं आए, आपने उनको इन्विटेशन भिजवाया था जी। वो मौजूद लोगों से आपने क्या राब्ता किया, वो क्यों नहीं आए? आपने अपनी परसेप्शन जाहिर की कि हुकूमत सिंध ने उन पर प्रेशर दिया इसलिए नहीं आए। आपने उनसे पूछा वो क्यों नहीं आए? मौजूद शख्सियात 5 मरतबा मैंने उनको दावतनामा अपने ज़ाती नंबर से व्हाट्सअप किया है। 1 मरतबा मैंने अपने ओहदेदार उनके दरवाज़ों पर भेजे हैं और उन्होंने 5 मरतबा के दावतनामों का जवाब नहीं दिया। मदीना मुनव्वरा से मैंने दावत दी है, कोई जवाब नहीं कि मैं रोज़े रसूल अतर के साए में हूँ और आपको दावत दे रहा हूँ सिंध के अमन के लिए आएँ। मैं काबतुल्लाह के छाँव में बैठा हूँ और आपको दावत दे रहा हूँ सिंध के अमन के लिए आएँ। जवाब नहीं दिया और क्या पूछूँ उनसे? मेरा व्हाट्सअप देख जी, बिल्कुल वो नहीं चाहते। मैं उनको जिम्मेदार समझता हूँ, बदम नहीं करता। उन्हें जो सिर्फ बुनियादी सबब इहो हो जो जरगो पहिरियां थियणो हो। मुंहिंजो उमिरि जो सफ़र ऐं तुर्की जो सफ़र लाइक़ु थियो, जंहिंजे करे 20-25 ॾींहं मां मुल्क खां ॿाहिरि हुउसि, जंहिंजे करे ही थोरो तातुल जो शिकार थियो आहे। 14 अगस्त जे बजाय 11 सितंबर बि परते कोन्हे। अलाह कंदो त अमन मार्च जेको आहे उहो बाहमी मुशावरत सां, तव्हांखे ख़बर आहे त असां प्रेशर ॾियण वारा आहियूं, प्रेशर वठण वारा न आहियूं। जी,
आहे ऐं शहरयार महर मुंहिंजो भाउ आहे। उहो मां जो भाउ शहरयार महर चए पियो त शिकारपुर में जेका बदमनी आहे, अमन अमान जी सूरत हाल ख़राबु आहे। कुझु बिरादरी जेका तव्हां सां शामिल थी आहे, उन जा क्रिमिनल जेके आहिनि उन सॼी सूरत हाल जा ज़िम्मेवार आहिनि ऐं उहा सरपरस्ती पिया कयो। गौस बख्श महर साहब अॼु बि मुंहिंजो चाचो आहे, शहरयार ख़ान महर अॼु बि मुंहिंजो भाउ आहे। लेकिन पुछणु इहो थो चाहियां त शिकारपुर जो SSP मुंहिंजी जमात हणायो आहे या उन्हनि हणायो आहे? DSP मुंहिंजी जमात हणायो आहे या उन्हनि हणायो आहे? SHOs मुंहिंजे दोस्तनि हणाया आहिनि या उन्हनि हणाया आहिनि? या मां SSP खे फ़ोन करे कॾहिं रोकियो आहे त फलाणे धाड़ेल जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई न कयो, फलाणे चोर जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई न कयो? या मां बज़ात ख़ुदि 20 दफ़ा फ़ोन करे SSP खे चयो आहे त कार्रवाई कयो, बेरहमानी कार्रवाई कयो, जमीयत उलमा इस्लाम तव्हां सां गॾु आहे। हुकूमत ज़िम्मेदार आहे, उहो पंहिंजी ज़िम्मेदारीअ खां इन्हनि लफ़्ज़नि ते कंहिं ते गंद उछले करे मुबर्रा नथा थी सघनि। SSP उन्हनि जो आहे, DIG उन्हनि जो आहे, IG उन्हनि लॻायो आहे, वज़ीर आला उन्हनि जो आहे, वज़ीर दाख़िला उन्हनि जो आहे, MNA उहो आहे, MPA उहो आहे। रोड नथा ठहनि शिकारपुर में, उनजो ज़िम्मेदार बि मां आहियां। अस्पतालुनि में रोज़ करप्शन थी थिए, मरीज़ तड़पी तड़पी शिकारपुर में मरनि था, उनजो ज़िम्मेदार बि मां आहियां। शिकारपुर में अरबनि रुपयनि जी करप्शन थी थिए, उनजो ज़िम्मेदार बि मां आहियां। MNA MPA कंहिंजे मथां इल्ज़ाम हणी करे पंहिंजो पाण खे सम्झनि था त असां अवाम जे अखियुनि में दूर विझी सघूं था, अवाम खे बेवकूफ़ बणाए सघूं था। उहे ॾींहं विया, अवाम सभिनी खे सुञाणे थो, सम्झे थो। ज़िम्मेदार कल्ह बि उहे हुया, अॼु बि उहे आहिनि, सुभाणे बि उहे रहंदा। अमन के लिए आपकी कोशिशें काबिल तारीफ है। गुज़िश्ता सब भी आपने अमन जरगा मुनक़िद किया और आज भी किया है। सर इसके बावजूद भी हुकूमत जो है वो सीरियस नहीं ले रही, इसकी क्या वजह है कि रोडों पर निकले? नहीं, उसकी वजह ये नहीं है। हुकूमत को पता है कि हमें अवाम ने मुंतखब नहीं किया, इसलिए हम अवाम के सामने जवाबदेह नहीं हैं। उनको पता है कि हम पैसों के बलबूते पर आए, एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखी पर आए, इन ताकतवर लोगों के बलबूते पर आए, लिहाजा हम उनको राज़ी रखें। अवाम जाने, अवाम का काम जाने। वो अवाम के रास्ते से आए ही नहीं, इसलिए वो अवामी ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उनको अवाम की जान छोड़नी होगी। अवाम को इस नहज पर वो न उकसाएं कि अवाम बगावत पर उतर आए और उनके बंगलों और उनके घरों और उनके दफातर का घेराव करे। इस पर अवाम को मजबूर न करें। इन हमारे पुरअमन इजलासों को, पुरअमन मुजाहरों को, पुरअमन जो है धरनों को, पुरअमन तकरीरों को वो सीरियस लें। ऐसा न हो कि फिर कल मामला कहीं और तक पहुंच जाए। राशिद साईं, जेकर मजमूई तौर ते क्रिमिनल जो तालिब जयवा कारकुन सां हुजे ऐं राशिद मोहम्मद खे चयो बाबा जयवा कारकुन इन्वॉल्व कंट्रोल छो था कयो, राशिद साहब चयो मां बेवस आहियां, त इहा राशिद साहब जी नाकामी हूंदी। ईअं तव्हांजे राइट लेफ्ट में सरदार वेठा आहिनि, उन्हनि जी 80% कम्यूनिटी बदकिस्मती सां ऐं शर्मिंदगी सां असांखे चवंदो पए त उन्हनि जी 80% कम्यूनिटी जे मथां वॾो दाग लॻल आहे, क्रिमिनल्स आहिनि। या तो पाण सरदार न सदा आहिनि, जे सरदार आहिनि त पोइ पंहिंजे कम्यूनिटीज़ ते कंट्रोल कनि, जो उन्हनि जे करे सॼी सिंध जो अमन बर्बाद पियो आहे। छा हुननि जी का पंहिंजी का ज़िम्मेदारी नथी पटे? सरदार जेके या त सरदार न सदा आहिनि, सरदार आहिनि त पंहिंजी कम्यूनिटी खे लगाम छो था ॾियनि? मैं ॾिसो, इल्ज़ाम ॾियणु आसान है, इल्ज़ाम देना आसान है। सरदार साहिबान को जब पुलिस ने बुलाया, क्या वो सरदार साहिबान पुलिस के पास नहीं गए? बार बार गए। रेंजर्स ने बुलाया, बार बार गए। और फिर SSP कहे उस सरदार को कि फलां गांव में फलां बंदा बैठा है, आप उसको अपनी गाड़ी में उठाकर लाएं और मेरे हवाले करें। जब SSP बेबस हो, जब रेंजर्स बेबस हो, 2 खरब की बजट के बावजूद वो कार्रवाई करने से कतरा रहे हो, तो सरदार अपने गले में मामला क्यों डालेगा? गंदे अंडे हर टोकरी में होते हैं। लेकिन सरदार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, पहले अमन जरगे में कहा, दूसरे अमन जरगे में कहा, वो मेरी जमात में उनके ब्याह पर मैं कह रहा हूं कि बेरहमाना ऑपरेशन करें, पकड़े उनको। क्यों नहीं पकड़ रहे? क्यों बेरहमाना ऑपरेशन नहीं कर रहे? क्या हम किसी को छुड़ाने के लिए थाने पर गए? मुझसे मुताल्लिक सरदार साहब थाने पर गए जब हम उनकी मालकी करें, फिर आप हमें मोरद इल्ज़ाम ठहराएं। मैं यही तो कह रहा हूं कि दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम डालकर वो अपने आप को इस सारे मामले से बरीओ ज़िम्मा करना चाहते हैं। वो बरीओ ज़िम्मा नहीं है, वही ज़िम्मेदार हैं, उन्हीं ने अमन कायम करना है। नहीं करा सकते, हुकूमत छोड़ दें, हमारे हवाले करें, फिर देखें कि मैं मुझसे वाबस्ता आम कारकुन, मौलवी, मुफ्ती या सरदार जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो अमन कायम करा सकता है या नहीं करा सकता। जिस तरह से आपने ये अमन में देखो, जैसे कि डॉक्टर इब्राहिम जो तो ये सक्कर में भूसा और जदोई टकरार चल रहा है, तो
पहले तो आप शुरुआत वहीं से कीजिए कि वहाँ वो हम करवाएंगे। वहीं से कर रहे हैं, वहीं से कर रहे हैं, वो इसलिए बैठे हुए हैं, वो तैयार हैं। और आप देखेंगे जब हम अमन कारवां के लिए निकलेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे। मौलाना साहब, जिस तरह से सिंध अमन जरगा ये दोबारा बुलाया गया है, इससे पहले भी बुलाया गया था, जिसमें तमाम सरदारों को दावत दी गई, लेकिन कुछ आए कुछ नहीं आए। लेकिन ये अगर अमन जरगा है और दोबारा बुलाया गया है, कोई अमन हुआ नहीं, अमली तौर पर कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई। सरदारों के हाथ में, बेचारों के हाथ में अब कुछ नहीं रहा, इनके हाथ में नहीं है कि ये अमन करा सके। पहले सरदार अपनी ड्यूटी भेजते थे, डॉक्टर इब्राहिम जद्दू साहब को पता है कि इनको मगवी मिलते थे, लेकिन अब ये खुद जा रहे हैं, लेकिन जो है मुजरिम वो मान नहीं रहे। सरदारों के हाथ में तो कुछ भी नहीं, ये सिर्फ फोटो सेशन एक थोड़ा सा इवेंट है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं एक तहरीक चलाई जाए, संजीदा तहरीक हो, ताकि वो अमन हो सके और प्रेशर हुकूमत और पुलिस पर डाला जाए। मैं आपकी राय से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा और बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। आपको याद है, आप गवाह हैं, वज़ीर आज़म के सामने जब मैंने कच्चे में जॉइंट ऑपरेशन का मुतालबा किया था और फिर 15 दिन का सिंध अमन कारवां चलाया था और कराची में पहुंच के लाखों लोग वहाँ शरीक हुए थे, तो उसके बाद मुझ तक ये पैगामात भेजे गए कि हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, हथियार डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे कबायली तसादुम हैं, उनके ख़ात्मा करवाया जाए। हमारे सरदारों को कहा जाए कि वो हमें तारीख़ दें, फिर हम अपने आप को हथियार डालने के लिए पेश करेंगे। मैं वो पैगाम लेकर वज़ीर आला के पास गया, वज़ीर दाखिला के पास गया, चीफ सेक्रेटरी के पास गया, आईजी के पास गया, डीजी रेंजर्स के पास गया, ISI MI के पास गया और उनको मैंने कहा कि भाई अमन उस वक़्त तक कायम नहीं होगा, आपका ऑपरेशन उस वक़्त तक कामयाब नहीं होगा, आपका जॉइंट ऑपरेशन उस वक़्त तक फ्रूटफुल नहीं होगा जब तक कबायली लड़ाइयों के ख़ात्मे के लिए आप किरदार अदा नहीं करेंगे। वहाँ से जब मुझे नाउमीदी हुई और कोई जवाब नहीं मिला, तो मेरी जमात ने यह फ़ैसला किया कि कबायली लड़ाइयों के ख़ात्मे के लिए इन सरदारों को टेबल पे बिठाया जाए, इनको इस बात पर आमादा किया जाए कि वो हमारे साथ चलें और अपने बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले जिन जिन की लड़ाइयाँ हैं उनको राज़ी करें कि वो फ़ैसले करें। तो आज के इस जरगे का मकसद कबायली लड़ाइयों के ख़ात्मे के लिए कोशिश करनी है और कबायली लड़ाइयों के लिए उनको आमादा करना है, जैसे मैंने ब्रीफिंग में। फिर उनकी मर्ज़ी है, जहाँ भी फैसला करें, सरदार के पास करते हैं, मुफ्ती के पास करते हैं, अदालत में करते हैं, लेकिन उनको राज़ी तो करें, तारीख़ें तो दिलवाएं। वो सरदार साहिबान जब तक नहीं होंगे वो मुमकिन नहीं है। लिहाजा हम कबायली तकरारों के ख़ात्मे के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी अमन अमान कायम कराना तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, सरदारों की ज़िम्मेदारी नहीं है, वो बंदूक देने वालों की ज़िम्मेदारी है, जिनके नाक के नीचे हथियार बॉर्डर से निकलते हैं और शिकारपुर के कच्चे तक पहुँचते हैं, 50-50 चौकियां क्रॉस करके आते हैं, फौज की, रेंजर्स की और पुलिस की। मुझ में बोलने की हिम्मत है, आप में शायद ये लिखने की और चलाने की हिम्मत हो या ना हो, ये उनकी जिम्मेदारी है। सरदार बेचारे क्या करेंगे जब फ़ोन आएगा SSP साहब को और DIG साहब को कि ये हमारे बंदे हैं, इनको छोड़ दो, तो फिर वो क्या करेंगे। लिहाजा अमन अमान कायम कराना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हमने इस हवाले से हुकूमत की तरफ एक हाथ बढ़ाया था कि जब तक कबायली लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होंगी अमन नहीं होगा, बंदूक नीचे नहीं जाएगी। बंदूक उस वक़्त तक नीचे जब तक नहीं जाती तब तक अमन कैसे होगा। उसके लिए आज हमने बैठकर जो है ये फ़ोरम तश्कील दिया है और इसी फ़ोरम को लेकर हम मिंथ मेड़ काफ़िले लेकर जाएंगे और लड़ाइयाँ ख़त्म कराने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जी, 14 अगस्त को हमने पहले भी सेलिब्रेट किया है, अब भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम पाकिस्तान के हकीकी मानों में आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अंग्रेज़ से तो ये मुल्क आज़ाद हुआ है, लेकिन अवाम को अभी तक हक़ हाकिमियत और हुक्मरानी नहीं दी गई। 74 साल से अवाम अब भी अपने हुकूक की जंग लड़ रहा है। 14 अगस्त को जहाँ इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे, वहीं अवाम को उनके हुकूक दिलाने के लिए कोशिश भी जारी रखेंगे। उन जे लाइ वेही करे जेका कमेटी तश्कील थी आहे उहा वेही मुशावरत कंदी, कोशिश कंदासीं त जल्द अज़ जल्द उनखे तश्कील। देखिए, आज के इस जरगे में प्रिया कुमारी मौजूए बहस रही है। हमारे हाथ में क्या है, यही है कि हम मजम्मत करें, उसकी फौरी बाजियाबी का मुतालबा करें। हुकूमत हमारे पास नहीं है,
आई जी हमारे ताबे नहीं है, DIG हमारे ताबे नहीं है, रेंजर्स हमारे ताबे नहीं है, तो हम यही कर सकते हैं जो हमारे हाथ में वो हम कर रहे हैं। उनका बहुत सा क्राइम हुआ पड़ा है, तो क्या उनको छोड़ देगी या रियासत छोड़ देगी? आपके कहने पर सवाल करेंगे तो वो किस पोजीशन पर होंगे? ये मैकेनिज्म कैसे तय होगा? सरेंडर करने के लिए हम उनको नहीं कहेंगे, हम उनको क्राइम बंद करने के लिए कहेंगे। बाकी सरेंडर जाने, हुकूमत जाने और वो जाने और उनके केसेस जाने। हम उनको कहेंगे कि कम से कम घर में बैठो, अपनी खेती बाड़ी करो, अपने घास उगाओ और उससे अपने बच्चों का पेट पालो, लोगों को तंग करना छोड़ दो। मौलाना साहब, आपने कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है वो पैसे देकर आई है, कि अगले इलेक्शन के लिए आप भी पैसे जमा करते हैं? आप दे देंगे चंदा मुझे? आप दे दें तो आपसे आगाज़ कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सहाफ़ियों के लिए और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम है।